یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. اتوار 7 دسمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. انڈونیشیا میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی. سینکڑوں تاحال لاپتہ. انڈیا کی ریاست گوا کے مشہور نائٹ کلب میں آتش زدگی، 23 افراد ہلاک. گوا سرکار کی طرف سے پوری اس کی انکوائری کی جائے گی اور جو کلپریٹ اس میں ہیں جو ان کو بیہائنڈ دا بارز کیا جائے گا. ٹرمپ کا انڈیا پاکستان جنگ بندی میں کردار اور سبق دینے کی پالیسی ترک کرنے کا ذکر. جانیے امریکہ کی قومی سلامتی کی نئی حکمت عملی کیا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک امریکہ فرسٹ کی پالیسی ہے. امریکہ کا جو دائرہ کار ہے دنیا میں اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے کم کیا جائے. جو اتحادی ہیں ان سے مشروط تعاون ہو. یہ بھی جانیے کہ پیوتن کے دورے سے ماسکو اور دہلی نے عالمی برادری کو کیا پیغام دیا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں گاڑی کی ٹکر سے اسکوٹی پر سوار 2 خواتین کی ہلاکت. فری کین میں صلح کے بعد عدالت کا 9 عمر ملزم کو رہا کرنے کا حکم. ایران میں خواتین کی میراتھن میں بغیر حجاب کے شرکت، ریس کے 2 منتظمین گرفتار. مزید یہ بھی جانیے کہ خوشبو کے لیے استعمال ہونے والی اگربتیاں صحت کے لیے کیسے خطرناک ہیں. بھارتی فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کی 30ویں سالگرہ پر شاہ رخ خان اور کاجول کے مجسموں کی نمائش. I love this area of London. I love London. I think all of us do. And for me to, and the place that I used to come with my kids, or even when I was younger, maybe even before I had kids. حساس معلومات کا معاملہ یا اختیارات سے تجاوز کا سوال. پاکستان کے سابق ایئر مارشل جواد سعید کا کورٹ مارشل کیوں ہوا؟ اس کے علاوہ دیگر خبریں اور موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. انڈونیشیا میں حالیہ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد تاحال لاپتہ ہیں. گزشتہ ہفتے آنے والے طوفان کے باعث ہونے والی طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں اب تک 1 لاکھ سے زائد گھر تباہ ہو چکے ہیں. اب تک کچھ علاقوں میں لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ کچھ مقامات پر فضا سے امداد پھینکی جا رہی ہے. انڈونیشیا میں آنے والے سیلاب حالیہ ہفتوں میں ایشیا میں پیش آنے والے کئی شدید موسمی واقعات میں سے ایک ہے. سری لنکا، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور ویتنام میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 2000 تک پہنچ چکی ہے. انڈونیشیا کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک آچے تمیانگ میں زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ سیلاب دیہاتوں کو مکمل طور پر بہا کر لے گیا. لنٹا وانگ باوا گاؤں میں زندہ بچ جانے والے ایک شخص نے BBC انڈونیشین سروس کو بتایا کہ لوگوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر پناہ لینی پڑی. انڈیا کے ساحلی علاقے گوا کے ایک مشہور نائٹ کلب میں آگ لگنے سے کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ مرنے والوں میں سے اکثریت گوا کے علاقے ارپورا میں واقع کلب کے عملے کے ارکان کی ہے، جبکہ مرنے والوں میں سیاح بھی شامل ہیں. پولیس کا ماننا ہے کہ سنیچر کے روز آدھی رات کو کلب کے کچن میں گیس کا سلنڈر پھٹا، جس سے آگ لگی جو پورے کلب میں پھیل گئی. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں گوا کے کلب میں ہونے والی آتش زدگی کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے. گوا کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آلوک کمار کا کہنا ہے آگ بنیادی طور پر نچلی منزل پر باورچی خانے کے آس پاس مرکوز تھی. ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر مرنے والوں کی لاشیں کچن کے نزدیک سے ملی ہیں اور اسی وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کلب کے ملازمین تھے. انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق آگ بھاگا میں برچ بائی رومیو لین نامی کلب میں لگی. یہ کلب گوا کے سب سے مشہور ساحلوں میں سے ایک پر واقع ہے. مقامی میڈیا کے مطابق اتوار کی صبح تک ریسکیو کا عمل جاری تھا. گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے صحافیوں کو بتایا کہ 3 افراد کی موت جھلسنے کے باعث ہوئی، جبکہ دیگر دم گھٹنے سے مرے ہیں.
गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। वजीर आला का मजीद कहना था कि मरने वालों में 3 से 4 सयाह शामिल हैं जिनकी उम्र और कौमियत का अभी तक इल्म नहीं है। वजीर आला का ये भी कहना है कि आग लगने की वजह की बाज़ाबिता इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने नई कौमी सलामती हिकमत अमली जारी करते हुए अमरीका फर्स्ट पॉलिसी को बुनियादी महवर करार दिया है। दस्तावेज में यूरोपीय इत्तेहादियों पर सख्त तनकीद की गई है और कहा गया है कि कम शराय पैदाइश, पनाहगुज़ीन पॉलिसियों और इजहार राय की पाबंदियों ने यूरोप को कमज़ोर कर दिया है। इस हिकमत अमली में ट्रंप को अमन का सदर करार देते हुए दावा किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया समेत 8 आलमी तनाज़ात में जंगबंदी और मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया है। दस्तावेज में कहा गया है कि अमेरिका मशरक़ वस्ता में सबक देने की पॉलिसी तर्क करेगा और चीन के साथ मुआशी व तज़वीराती तवाज़न कायम करेगा, जबकि ताइवान के मामले पर जंग से बचने के अज़म का भी इजहार किया गया है। अमेरिका ने खित्ते में इंडिया के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और इंडो पैसिफिक में मुश्तरका सिक्योरिटी किरदार बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार एजाज हैदर। हम उनसे ये जानते हैं कि अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है। एजाज हैदर। इसके अंदर जो 5 जो है वो बुनियादी टेक अवेज आप कह लें। एक तो जैसे आपने इब्तदाइये में कहा कि जैसे आप कह सकते हैं कि अपना जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर अमेरिका ने कहा है कि जी ये हमारा इलाका है और इसमें कोई डर नहीं आ सकता। दूसरा जो है वो अहम चीज़ है कि ताइवान के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको हमने रोकना है। इसके साथ चाइना का भी ताल्लुक है, उसकी तरफ भी हम आते हैं। तीसरी जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि यूरोप को ट्रंप साहब ने, और ये बहुत अरसे से ये बात हो रही है, आपको याद है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं वैंस साहब, वो जब गए तो उन्होंने जो तकरीर की उस पर भी बहुत बातचीत हुई उस ज़माने में। उन्होंने भी बेसिकली बिरेटेड यूरोप, तो ये यूरोप के हवाले से भी। चौथी जो अहम चीज़ है वो ये है कि मशरक़ वस्ता से कहा गया है कि हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट अब होना चाहिए, क्योंकि वो जो पुराने मामलात थे तेल के और तवानाई के, वो अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं रही उस तरीके से। इसलिए और फिर ये भी कहा कि गज़ा में जो है ना ये और पूरा एक अमन मुआहदा हो गया है, इसलिए हमें वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलना है। और जो 5वीं चीज़ है वो रियलिज्म में उन्होंने एक नई इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की है, जिसको कहते हैं वो फ्लेक्सिबल रियलिज्म। सही। इजाज हैदर, आपका बेहद शुक्रिया। सामीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इंडिया दौरे को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जिसके दौरान दोनों मुमालिक ने सेहत, मैरीटाइम, फर्टिलाइजर, कस्टम्स, साइंस और मीडिया समेत 16 शोबों में शराकत दारी के मुआहदे किए हैं। सदर पुतिन और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिफा और जोहरी तवानाई में ताउन के नए इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया है और इस दौरे का आलमी सतह पर सियासी पैगाम दिया गया है कि इंडिया तन्हा नहीं और इसे रूस के साथ मुतबादिल मार्केट और शराकत दारी के मौके हासिल हैं। दोनों मुमालिक ने इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने और मजमूई तिजारत को अगले 5 साल में $100 अरब तक बढ़ाने का हदफ भी मुकर्रर किया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये दौरा रूस के लिए भी इंतहाई अहम है, जिसके जरिए वो दुनिया को आलमी पाबंदियों के बावजूद इंडिया जैसे उभरते मुमालिक के ताउन का इशारा दे सकता है, जबकि इंडिया ने भी दुनिया को ये दिखाया है कि वो किसी एक मुल्क पर मुनहसर नहीं और आलमी सतह पर मुतवाज़न पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने PTV चौक के करीब स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों की हलाकत के केस में फ्री कैन के दरमियान सुलह होने के बाद कम उम्र मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। पुलिस के मुताबिक समाअत के दौरान दोनों मुतासरा खानदानों ने अदालत में मुलजिम को माफ करने के बयानात कलमबंद कराए।
मुतासरा फैमिलीज के बयानात के बाद अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए इसे रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। याद रहे कि ये हादसा चंद रोज कबल उस वक्त पेश आया जब मुलजिम मुबैना तौर पर गलत ड्राइविंग करते हुए स्नैपचैट वीडियो बना रहा था और उसकी गाड़ी स्कूटी से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में समरीन हुसैन और ताबिंदा बतूल जाँ बहक हो गई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और हादसे में हलाक होने वाली दोनों लड़कियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इकदामात किए गए थे और मीडिया समेत किसी भी शख्स को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ईरानी अदलिया का कहना है कि हिजाब न पहनने वाली खवातीन को मैराथन में शिरकत की इजाज़त देने पर रेस के 2 मुंतज़मीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम की जानिब से ये फैसला जुमा के रोज़ मुनक्कद होने वाली रेस में बगैर हिजाब के हिस्सा लेने वाली खवातीन की तस्वीर ऑनलाइन सामने आने के बाद लिया गया है। ईरान के जनूबी साहिल के नज़दीक वाक़े जजीरा कीश पर होने वाली मैराथन में 2000 खवातीन और 3000 मर्दों ने अलग अलग हिस्सा लिया था। रेस के दौरान सुर्ख टी शर्ट्स में मलबूस कुछ खवातीन ने हिजाब या सर नहीं ढांपा हुआ था। ईरान में तब्दीली के बहुत से हामियों ने इन तस्वीर को सराहा, जो इसे ईरानी खवातीन की जानिब से ईरान में हिजाब से मुताल्लिक आयद पाबंदियों को मुस्तरद करने के मुतरादिफ देखते हैं। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम इसे नाकाबिल कबूल अमल के तौर पर देखते हैं और इसीलिए अदलिया और मुंतज़मीन इसके खिलाफ तेजी से हरकत में आए हैं। सामीन, पाकिस्तान में मजहबी तकरीबात, जनाजे या घरेलू रसूमात के दौरान अगरबत्तियां जलाकर खुशबू पैदा करने का रिवाज आम है, लेकिन माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये बज़ाहिर खुशबू देने वाली अगरबत्तियां सेहत के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकती हैं। साइंसदानों और पल्मोनोलॉजिस्ट के मुताबिक अगरबत्ती के धुएं में बारीक ज़रात यानी PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैर मुस्तहकम नामियाती मुरक्कबात और पॉलीहाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं, जो फेफड़ों, दिल, खून की नालियों और दिमाग पर मनफी असर डाल सकते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ एलर्जी, दमा और इम्यूनोलॉजी यानी ACAA की रिपोर्ट के मुताबिक अगरबत्ती के धुएं के मुसलसल सांस लेने से बच्चों, बूढ़ों और दमा या कमजोर फेफड़ों वाले अफराद में सांस की बीमारी, एलर्जी, सर दर्द, खांसी, फेफड़ों का सरतान और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तहकीक में यह भी बताया गया है कि 1 ग्राम अगरबत्ती से तकरीबन 45 मिलीग्राम बारीक ज़रात खारिज होते हैं, जबकि सिगरेट से सिर्फ 10 मिलीग्राम निकलते हैं। यानी अगरबत्ती सिगरेट के धुएं के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा नुकसानदेह है। माहिरीन ने सार्फिन को हिदायत की है कि अगरबत्ती के इस्तेमाल के दौरान कमरे में वेंटिलेशन रखें, बच्चों और बूढ़ों को धुएं से दूर रखें और अगर मुमकिन हो तो अगरबत्ती का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। कुछ माहिरीन ने इलेक्ट्रिक या पानी वाले खुशबू डिफ्यूज़र के इस्तेमाल को महफूज मुतबादिल करार दिया है। लंदन में बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान और काजोल के मुजस्मों की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है। ये नुमाइश उनकी मशहूर फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 30 साल मुकम्मल होने के मौके पर लगाई गई है। अदाकार शाहरुख खान और काजोल ने फिल्म की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि इस फिल्म ने उनकी ज़िंदगियों में ख़ास मुकाम बनाया और मद्दाहों के साथ जुड़ी यादें आज भी उनके लिए बहुत कीमती हैं। दोनों अदाकारों ने अपने शायकीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये फिल्म और इसके किरदार हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। नुमाइश में मद्दाह फिल्म के मशहूर मनाज़र, पोस्टर्स और मुजस्मों के साथ यादगार तस्वीर भी ले सकते थे। 5, 4, 3, 2, 1. I love this area of London. I love London. I think all of us do. And for me to, and the place that I used to come with my kids, or even when I was younger, maybe even before I had kids, was Piccadilly and Leicester Square and all the movie theatres. So I couldn't tell actually properly. I'd like to go back at night and see it quietly. But it's really nice to be part of a statue, especially with Kajol, and especially for Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, on Leicester Square in front of one of the movie theatres where I guess all of us have watched films and grown. And all of us we have had films screened there as well. Yeah, we've had film screenings, I've had popcorn, I've had ice cream there, I've hung around with the kids. It's a little unreal. Yeah, it's a little unreal. It's a little like, it's so, Unbelievable. It's a little unbelievable. I'm still not sure. I hope they keep it there. Like, they're going to take it away from me. I have to click a picture with my kids in front of it. Yeah.
पाकिस्तान एयरफोर्स ने तस्दीक की है कि साबिक एयर मार्शल जवाद सईद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल उन पर हसास मालूमात अपने भाई को फराहम करने के इल्ज़ाम के तहत किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मामला कौमी सलामती से मुतल्लिक है। ताहम जवाद सईद की अहलिया ने इस कार्रवाई को मुतनाज़ करार देते हुए कहा है कि उनके शोहर के खिलाफ इकदाम दरअसल मौजूदा एयर चीफ के इख्तियारात से तजावुज़ को बेनकाब करने पर किया गया है। इस तनाज़े की मज़ीद तफसील आज के BBC रीड्स में, जिसे तहरीर किया है शहजाद मलिक ने और पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के एक साबिक एयर मार्शल जवाद सईद की बीवी शाज़िया जवाद के मुताबिक 1 जनवरी 2024 को चंद नामालूम अफराद उनके घर पर आए और बताया कि वो उनके शोहर को सिक्योरिटी की वजह से अपने साथ ले जा रहे हैं। वो कहती हैं कि जवाद ने घर वालों से कहा कि उन्हें कुछ दिन अपने लोगों के साथ रहना पड़ेगा। बीवी के लिए नामालूम मगर शोहर के लिए अपने, ये लोग थे कौन? और अगर अपने थे तो क्या अपने अपनों से ऐसा सलूक करते हैं कि शोहर को इंसाफ दिलवाने के लिए बीवी को कभी एक और कभी दूसरा दरवाज़ा खटखटाना पड़े? BBC उर्दू के शहजाद मलिक की रिपोर्ट पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के एक साबिक एयर मार्शल जवाद सईद कोर्ट मार्शल के बाद इस वक्त कैद की सज़ा काट रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान में एयर मार्शल का ओहदा आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर तस्वुर किया जाता है। जवाद सईद की बीवी शाज़िया जवाद पिछले कई महीनों से कभी एक अदालत आलिया में दुहाई दे रही हैं तो कभी दूसरी हाई कोर्ट से अपने शोहर के लिए इंसाफ मांग रही हैं। उनका कहना है कि कम से कम उन्हें उनके शोहर पर आयद इल्ज़ामात और इस सिलसिले में की गई फ़ौजी अदालत की कार्रवाई की तफसीलात तो फराहम की जाएँ। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का मौक़िफ़ है कि जवाद सईद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने हसास मालूमात शेयर करने का मुर्तकिब पाया था। PAF के एक तर्जुमान ने BBC के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि साबिक एयर मार्शल ये हसास मालूमात अमेरिका में अपने भाई के साथ शेयर करते थे। तर्जुमान के मुताबिक साबिक एयर मार्शल अपने भाई को यहाँ तक हसास मालूमात फराहम करते थे कि मियांवाली एयरबेस पर कौन कौन से जंगी जहाज़ खड़े हैं। लेकिन शाज़िया जवाद ने BBC से बात करते हुए कहा कि उनके शोहर का कोर्ट मार्शल उस वाइट पेपर की बुनियाद पर किया गया है जिसमें उन्होंने मौजूदा एयर चीफ के इख्तियारात से तजावुज़ का जिक्र किया था। जवाद सईद के भाई हमाद सईद ने भी BBC से बात करते हुए यही इल्ज़ाम आयद किया कि एयर चीफ बाबर सिद्धू की बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को उजागर करने वाले वाइट पेपर से तवज्जो हटाने के लिए वो एक कौमी एजाज़ याफ्ता फ़ौजी और एयर मार्शल जवाद को बदनाम कर रहे हैं और मज़हका खेज़ और शर्मनाक इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्होंने मियांवाली बेस में तैयारों के बारे में मुझे मालूमात दी थी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि किसी भी अदालती या वज़ारत दिफ़ा को दी गई दरख्वास्त में वाइट पेपर का जिक्र नहीं है। और जब इस बारे में शाज़िया जवाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके कानूनी मुशीरों ने उन्हें ऐसा ना करने का मशवरा दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि मज़कूरा वाइट पेपर अभी तक शाया नहीं हुआ है, अलबत्ता किसी ने उसे उनके शोहर के लैपटॉप से निकाल लिया था। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान की वजारत खारिजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो 8 और 9 दिसंबर को इस्लामाबाद का सरकारी दौरा करेंगे। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया APP के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर के हमरा अहम वज़रा और सीनियर हुकाम का एक आला सतही वफ्द भी होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से इतवार के रोज़ जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ये सदर प्राबोवो सुबियांतो का पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। इससे कबल 2018 में इंडोनेशिया के उस वक्त के सदर जोको विदोदो ने पाकिस्तान का दौरा किया था। सदर प्राबोवो सुबियांतो का दौरा इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि इस साल पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है।
पाकिस्तानी फौज ने दावा किया है कि सूबा बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किए जाने वाले एक ऑपरेशन में 12 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। फौज के शोबा तालुकात आमा यानी ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 6 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला कलात में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इतला पर एक ऑपरेशन किया। बयान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से शिद्दत पसंदों के ठिकानों का पता लगाया और शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 12 अस्करियत पसंद मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले अफराद इलाके में दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और उनके कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है।